Dear students of 7th class, Assalamu alaikum. My greetings to all of you, especially the greetings of Shabi Qadr. And today, my subject is English, class 7th, and my topic is Window, the poem, written by Wes Magee. And dear students, let us read the summary of this poem in English. After that, I will translate it into Urdu. Now we will read this summary. This poem is about a student who has a strong desire to visit all those places he hasn't visited so far. He walks through a long corridor and sees different things. He gazes at things through a window. He sees elephants in Africa, a jet airliner crashing far above the white clouds, waterfall, icebergs, and many other things. He is always willing to carry messages or register to other classmates or office, as it gives him a chance of seeing these things again and again. In short, the student wants to observe everything around him willingly and enjoy the sights. This was the summary of Window, the poem Window in English. عزیز بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ونڈو، یعنی ایک نظم ہے، لکھنے والے ہیں ویس میگی. ونڈوز پر انہوں نے نظم لکھی ہے. اگر ہم ونڈو کا معنی دیکھیں گے تو پیارے بچوں، ونڈو ہم کھڑکی کو کہتے ہیں. This poem is about a student who has a strong desire to visit all those places he hasn't visited so far. یہ نظم ایک طالب علم کے متعلق ہے. پیارے بچوں، یہ نظم ونڈوز ہے، یہ ایک طالب علم کے متعلق ہے جس کی یہ چاہت تھی کہ وہ ان تمام جگہوں پر جائے جہاں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا، یا جو جگہ اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی. He walks through a long corridor and see different things. He gazes at things through a window. وہ ایک لمبے راستے سے چل پڑا کیونکہ پیارے بچوں، اس کی چاہت تھی کہ میں گھر سے نکلوں، باقی جگہوں کی طرف جاؤں، باقی جگہوں کا نظارہ کروں. He walks through a long corridor. وہ ایک لمبے راستے سے چل پڑا اور اس نے مختلف چیزیں دیکھی. وہ ان مختلف چیزوں کو کھڑکی کے ذریعے یا کھڑکی پر سے دیکھ رہے تھے. He sees elephants in Africa, a jet airliner crashing far above the white clouds, waterfall, icebergs, and many other things. اس نے جاتے جاتے اس نے افریقہ میں ہاتھی دیکھی، جہاز دیکھا، اس نے بادل دیکھے، پانی کا ٹپکنا، واٹر فالز کہتے ہیں آبشار کو، آبشار دیکھے، اس نے برفانی تودے دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ساری چیزیں بھی دیکھی. He always willing to carry messages or register the other classmates or office, as it is gives him a chance of seeing these things again and again. In short, the student wants to observe everything around him willingly and enjoy the sights. He always willing to carry messages. وہ ہمیشہ آمادہ تھا کہ میں یہ پیغام تمام اپنے ہم جماعتیوں تک پہنچاؤں.
क्लास मेट्स कहते हैं प्यारे बच्चों हम जमातियों को, क्लास फेलो भी कहते हैं। वो हमेशा आमादा था कि मैं ये पैगाम तमाम अपने हम जमातियों को बता दूं कि ये मौका उनको बार बार मिलना चाहिए। आखिरकार ये तालिब इल्म चाहता था कि वो हर एक चीज़ का मुशाहिदा करे और हमारे इर्द गिर्द की इन खूबसूरत जगहों का खूब से नज़ारा करे, खूब से मज़ा उठाए। तो ये थी प्यारे बच्चों नज़म। शायर जो लिखने वाले हैं वेस मैगी, ये कहते हैं कि ये नज़म जो है एक तालिब इल्म के मुतल्लिक़ है और इस नज़म का मकसद यही था, इस शायर का इस नज़म के लिखने का मकसद यही था कि ये एक तालिब इल्म की चाहत थी कि वो उन तमाम जगहों पर जाए जहाँ वो इससे पहले कभी नहीं गया है, या उन चीज़ों को देखे जो चीज़ें इसने इससे पहले कभी भी नहीं देखी हो। तो अब इसमें प्यारे बच्चों कुछ वोकैबुलरीज हैं प्यारे बच्चों इसमें। तो वोकैबुलरीज जो हैं वो हैं, जैसे यहाँ पे इसमें एक वर्ड है विंडो। तो प्यारे बच्चों विंडो जो है वो खिड़की को कहते हैं, विंडो जो है वो खिड़की को कहते हैं। तो फिर डिज़ायर है, डिज़ायर ख्वाहिश को कहते हैं, यानी इस तालिब इल्म की ख्वाहिश यही थी कि मैं हर एक चीज़ का नज़ारा करूं और मुझे बार बार ये मौका मिलना चाहिए ताकि मैं हर एक चीज़ को, हर मुल्क का दौरा करूं और वहाँ हर एक चीज़ का नज़ारा, हर एक साइड का नज़ारा करूं। तो इसीलिए डिज़ायर का इस्तेमाल किया गया था। तो डिज़ायर का मतलब हो गया ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना। तो फिर है विज़िट का मतलब, विज़िट कम को कहते हैं यानी आना या जाना। विज़िट आने को कहते हैं यानी आना। तो क्लाउड बादल को कहते हैं, वाटरफॉल आबशार को कहते हैं यानी पानी के टपकने को आबशार कहते हैं। साइट बसारत को कहते हैं, नज़ारे को कहते हैं, किसी जगह को कहते हैं, खूबसूरत जगह को। आइसबर्ग का मतलब हो गया प्यारे बच्चों बर्फ़ का तूदा, जैसे एवलांच भी हम उनको कहते हैं, बर्फ़ का तूदा। तो एलिफेंट जंगली जानवर यानी हाथी को कहते हैं। कॉरिडोर कहते हैं रास्ते को, कोई भी रास्ता। पोयम नज़म को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये कॉरिडोर, इसमें एयरलाइंस का इस्तेमाल किया गया। एयरलाइंस का मतलब है हवाई रास्ते। तो कॉरिडोर जो है ये हम हवाई रास्ते को भी कह सकते हैं। ये हम जो सियासी लेवल पे दो मुल्कों के दरमियान में से कोई भी रास्ता इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बीच में से मतलब दूसरे मुल्क की तरफ मतलब गुजरे, उसको भी हम कॉरिडोर कह सकते हैं। या कोई हुकूमती माहिदा होता है वो भी किसी कॉरिडोर के तहत होता है। तो कॉरिडोर रास्ते को हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम एयरलाइंस की बात यहाँ पे हुई है, हवाई रास्ते। तो पोएम नज़म को कहते हैं। चांस का मतलब हो गया मौका। तो ये चांस का लफ्ज़ इसलिए इसमें इस्तेमाल किया गया है कि ये शायर जो है ये तालिब इल्म जो है ये अपने इन साथियों को, अपने इन क्लास फेलोज़ को, क्लासमेट्स को, हम जमातियों को यही मैसेज पैगाम पहुँचा रहा था कि आप भी इन जगहों का नज़ारा करें, क्योंकि ये ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो इसीलिए चांस का इस्तेमाल किया गया है। चांस का मतलब है मौका। तो अफ्रीका नेम ऑफ कंटिनेंट। तो अफ्रीका प्यारे बच्चों मुल्क का नाम है। अफ्रीका तीसरा बड़ा मुल्क है। तो अफ्रीका, तो यहाँ पे हमने लिखा है इसका नेम ऑफ ए कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका एक बरअज़्म का नाम है। और उम्मीद है कि आप भी इन अल्फाज को अपनी कॉपी पर लिखोगे। जैसे मैंने ऊपर लिखा है वर्ड्स यू मे नॉट नो, वो अल्फाज, वो वोकैबुलरी जिनका माने या जिनको आप जानते नहीं हैं। तो उम्मीद है कि आप भी अपनी कॉपी पर इसको नोट करके रखोगे। शुक्रिया।